All right. So now let's start the presentation part. So children, can you read what is written on the screen? Is the font size okay? Yes, sir. Yes, sir. पूरा अच्छी से पढ़ने में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा आ रहा हो स्क्रीन में और आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो? No, sir. Okay. So in the previous class, we studied quantum numbers and its types. What are these four types of quantum numbers? Can anyone tell me what are four types of quantum numbers? Sir. Principal quantum number, special quantum number. Huh? Good, good. Magnetic quantum Magnetic number. quantum, azimuthal quantum And number. Azimuthal. Okay. So one by one, I am telling you, there are four types of quantum numbers. These are first, principal quantum number. Second, azimuthal quantum number. Third, magnetic quantum number. Fourth, spin quantum number. I also told you in the previous class that if the value of principal quantum number n is 1, then what will be the value of azimuthal quantum number? 0 to n minus 1. मतलब 0 हो गया और n 1 था, इसलिए 1 minus 1 equals कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा. ठीक है. So if the value of principal quantum number is n, then the value of azimuthal quantum number will be 0 to n minus 1. For every value of azimuthal quantum number L, there are three values for magnetic quantum number. कौन कौन से? minus L, 0, plus L. And for every value of magnetic quantum number, there are two values of spin quantum number, plus half, minus half. ठीक है. Plus half, suppose it is clockwise spinning of electron, then minus half will become anti-clockwise spinning of electron. So here is the question: which of the following is a possible set of quantum numbers that describes an electron? ठीक. First option, n equals 3, L equals 2, ml equals minus 3, ms equals plus 1. Is this set of quantum numbers possible or not? Let's check it. So if n equals 3, what should be the values of L? The values of L would be either 0 or 1 or 2. 2 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि n की वैल्यू 3 है. ठीक है. So here in this question, L is equal to 2, it is possible. Now for L equals 2, what can be the possible values of magnetic quantum number? Minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. But in this set of quantum number, the value is minus 3, which is not possible. So first option is impossible. It is not possible values of quantum numbers for an electron present in an atom. So it can be discarded. Now let's come to second option, option number B. Here n equals 0. N equals 0 means there is no any cell. Value of n can never be 0. Value of n starts from 1, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay. So this set of quantum number is also not possible and it can be discarded from this question. Option second. Then let's come to option number third, C. N equals 4. Fine. N equals 4, possible. Now for n equals 4, what can be the values of azimuthal quantum number L? 0, 1, 2 and 3. Okay. 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम L की वैल्यू क्या हो सकती है? n minus 1. ठीक है.
सो एल की वैल्यू यहाँ पे 2 दी है, दैट इज पॉसिबल। क्यों, कौन कौन सी हो सकती है, 0 1 2 3, तो 2 उसमें से एक है। सो एल इक्वल्स टू, इट इज पॉसिबल। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यूज क्या हो सकती है, हमने आपको क्या बताया था कि वैल्यूज ऑफ एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। प्लस माइनस एल का मतलब कितना, अगर एल 2 है तो क्या वैल्यूज होनी चाहिए एम की, -2 -1 0 +1 एंड +2। हियर द गिवन वैल्यू इज -1 विच इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आ रहा है -2 के बाद -1 आता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू -1 पॉसिबल। नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर ms मींस स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है इसमें, 0 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती हैं, आइदर +12 और -12। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, इट कैन बी डिस्कार्डेड। देन ऑप्शन नंबर डी, n equals 3, for n equals 3 what can be values of l, 0 1 2, so here in the question it is 1, that means it is possible, l equals 1 is fine. Then let's find out the values of magnetic quantum number m। m की क्या वैल्यू होगी, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1। तो यहाँ पे l की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू है -1, इट इज फाइन, इट इज पॉसिबल। अब 1 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज वैल्यू -1, देन द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर वुड बी आइदर +12 और -12। in the question it is +12, that means it is also possible. So option number D is correct set of quantum numbers for an electron present in an atom. Let's check option number E, n equals 4, l equals -3। -3, अब देखिए m की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3, इट कैन नेवर बी माइनस। ठीक है, माइनस नेगेटिव नंबर जो आ रहे हैं क्वांटम, वो किसके लिए आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आते हैं, बाकी किसी में नहीं आते। इसका मतलब दिस सेट E is also not a correct set of quantum number for an electron present in an atom। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, आंसर बी। इज इट फाइन नाउ ऑल ऑफ यू, समझ में आया रोनित? यस सर। आगे सन में यस सर। कैसे निकाला कि कौन सा सेट सही है कौन सा सेट गलत है, उसके लिए हमको अपने वैल्यूज जो है इनके फॉर्मूले जो है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है मोहित, समझ में आया? यस सर। ओके, जहां पे बेटा नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, मुझे तुरंत इंटरप्ट करना और पूछना, बोलना सर ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार और बताइए। ठीक है, डोंट हेजिटेट। देन प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have each of the following quantum number or sub-level designations। How many electrons, मतलब आपको इन क्वांटम नंबर के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स बताना है कि इन क्वांटम नंबर में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। How many electrons in an atom can have each of the following quantum number और सबसेट। तो जो क्वांटम नंबर दिया है इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या जो सबसेट दिया है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ए। पार्ट ए में क्या वैल्यू दी है, n equals 2, l equals 1 एंड ml का मतलब होता है m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो m equals 0, आपको बताना है कि इस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो देखिए n equals 2, तो l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम, l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 to 2 - 1। ठीक है, जितना मैक्सिमम n है उससे 1 कम तक, तो 0 से 2 - 1 तक l की वैल्यू हो सकती है। सो l कैन हैव आइदर 0 और 1 बिकॉज 2 - 1 विल बी 1। सो l की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1, एंड l हैज 1 हियर। यहाँ क्वेश्चन में दिया कि l की वैल्यू 1 है। ठीक, नाउ फॉर l इक्वल्स 1, l अगर 1 है तो ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यूज -1 to +1, इट मींस -1 0 एंड +1। ठीक है, -1 के लिए मान लीजिए कौन सा ऑर्बिटल हो गया, px, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ऑर्बिटल कौन सा है, p।
ठीक है। सो पी सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से? -1 वाला, 0 वाला, +1 वाला। -1 वाला क्या हो गया? पी एक्स। 0 वाला क्या हो गया? पी वाई। ठीक है। +1 वाला क्या हो गया? पी जेड। so there are 3 possible orbitals, और each orbital can have maximum of 2 electrons। ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं, मतलब p की वैल्यू, l की वैल्यू अगर 3 है तो l की जितनी भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो -1 to 0 to 1, since ml that is m is 0। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है। m की वैल्यू दिया है 0, m की वैल्यू 0 दिया है, मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 0। मान लीजिए ऑर्बिटल कौन सा हो गया? पी वाई ऑर्बिटल। सो द क्वांटम नंबर गिवन हियर इज वैलिड। क्वांटम नंबर तो ये वैलिड है, सही है। नाउ सिंस फॉर 1 m वैल्यू देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। हर एक m वैल्यू के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? या तो +½ हो सकती है या तो -½ हो सकती है। मतलब for every value of magnetic quantum number there can be 2 electrons, one with spin +½ and another with spin -½ so 2 electrons can have given quantum number। इस सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है। कैसे पता एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है? क्योंकि m की वैल्यू सिर्फ एक ही दी है, क्या? 0। m की वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा? p का एक, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से कोई सा भी एक ऑर्बिटल है, लेट इट बी पी वाई। तो पी वाई एक ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। so this set of quantum number can have maximum of 2 electrons। सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए n की वैल्यू 2 हो, l की वैल्यू 1 हो और m की वैल्यू 0 हो। फाइन, समझ में आया? योर रेस्पॉन्स प्लीज। समझ में यस आया? सर। आगे समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर लास्ट का तो रिपीट करना। हाँ, सर एंडिंग का बता दीजिए। यस यस। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया m की वैल्यू 0। देखिए पार्ट ए में m की वैल्यू क्या दिया है? 0। m की वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर m की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी? -1, 0 और +1। ये 3 ही वैल्यू m की हो सकती थी। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू क्या है? 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड +1। ये सिर्फ 0 वाले की बात कर रहा है, क्योंकि m की वैल्यू 0 दिया है, तो m इक्वल 0 मतलब एक ऑर्बिटल है, कोई सा भी ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ 2, एक +½ स्पिन वाला, दूसरा -½ स्पिन वाला। तो एक ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं। टोटल p सबसेल में कितने हो सकते हैं? 2 × 3 6। लेकिन ये सभी p ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, क्योंकि ml की एक ही वैल्यू दी है, वो 0 दी है। तो एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बस। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, one with clockwise spin, another with anti-clockwise। क्लियर? सर अगर 2 वैल्यू दी होती तो 4 इलेक्ट्रॉन होते। यस, 4 हो जाते। 3 वैल्यू दी होती, मान लीजिए -1 भी होता, 0 भी होता, +1 भी होता, तो 3 ऑर्बिटल हो गए। एल की 3 वैल्यूज हो गई, एल की एम की 3 वैल्यूज हो गई, इसका मतलब 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या दिया है आपको? 5f सबसेल दिया हुआ है। तो 5f सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। f हैज एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 3। देखो f कब आएगा? जब n की वैल्यू कितनी है? 5। क्वेश्चन में दिया 5f, मतलब n की वैल्यू 5। तो l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये l की वैल्यूज हो जाएंगी। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल होगी? h सबसेल।
एल की वैल्यू 1 है तो कौन सी सबसेल होगी? पी सबसेल। एल की वैल्यू 3 है तो कौन सी सबसेल होगी? डी सबसेल। एल की वैल्यू 4 है तो कौन सी सबसेल होगी? एफ। ठीक है, एफ फॉर फंडामेंटल। सो एफ हैज एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 2 पे आ जाएगा, 1 पे पी, 2 पे डी, और एफ किस में आएगा? 4, सॉरी 4 नहीं 3। ठीक है, एफ कैन हैव एजीमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3। सो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज कैन बी, कौन कौन सी हो जाएंगी? अगर एल की वैल्यू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या होंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल कितनी वैल्यूज हो गई बताओ? 7 7 7। ठीक, वेरी गुड। सो कौन कौन सी हो गई एम की 7 वैल्यूज? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। So there are total 7 values for m for f orbital। ठीक है, अब 7 वैल्यूज m की हो गई तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? हर एक वैल्यूज में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so there are total 7 magnetic quantum number values for 5f। Since for each magnetic quantum number value there can be only 2 electrons, so 5f can have only 14 electrons in an atom। एक जो 5f ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 14। क्यों हो सकते हैं 14? क्योंकि उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स कैसे पता चला आपको कि 7 ही ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज टोटल कितनी है? 7। कौन कौन सी हैं? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ओके, so since there are only 7 orbitals possible, so maximum of 14 electrons can be there in 5f subcell। clear? understood? नेहा, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया तो बोल दिया करो। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर सी? n equals 4 and l equals 1। ये कंडीशन दी गई है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 4 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? ठीक, अब देखिए फॉर n इक्वल्स 4, नीचे देखिए पार्ट सी, फॉर n इक्वल्स 4 l कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? 0, 1, 2 एंड 3। 3 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि n की वैल्यू 4 है। ठीक है, n-1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l आर 0, 1, 2 एंड 3। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? l इक्वल्स 1। फॉर l इक्वल्स 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml कैन हैव वैल्यूज -1, 0 एंड +1। 3 ही हो सकते हैं। So there are total 3 ml values, that means there can be maximum of 6 electrons। ठीक है, 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, -1, 0 एंड +1, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 3 जा 6। बट since for each ml values there can be 2 electrons, so the atom can have maximum of 14। ये मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स विथ n इक्वल्स 4 एंड l इक्वल 1। ठीक है, ये 14 यहाँ से हटा देना है, मैं हटा दूंगा इससे बाद में, आप लोग भी हटा दीजिएगा। ठीक है, हियर इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 6 electrons। why? because there are only 3 possible values for magnetic quantum number, -1, 0 and +1। और हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए टोटल एक के लिए कितनी वैल्यूज होंगी? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 के लिए कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in given set of quantum numbers। clear? Next, after quantum number, let's come to study the shapes of different types of orbitals। अभी हमने आपको बताया था कि एक शेल के अंदर सबसेल्स होती हैं।
उन सबसेल्स के क्या क्या नाम होते हैं? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। ठीक, अब एस सबसेल में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? पी सबसेल में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? डी सबसेल में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? एफ सबसेल्स में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? दैट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एस सबसेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 0, मतलब एक ही वैल्यू है 0। ठीक है, और 0 है इसका मतलब एक से ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं हो सकते। एक से ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं हो सकते मतलब एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जैसे 1s सबसेल है तो उसमें 1s एक ही ऑर्बिटल होगा, ये उसका एक ऑर्बिटल हो गया, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम हो गया, या हम बोल सकते हैं कि ये एक s ऑर्बिटल का शेप है। So what is this shape? The shape of s orbital is spherical, in which the electron density is equally distributed along x-axis, y-axis and z-axis. क्योंकि एक स्फेरिकल बॉल है, उसमें 3 एक्सिस अगर आप सेंटर से पास कर देंगे तो तीनों एक्सिस पे, तीनों प्लेन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी सेम। तो s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल ऑर्बिटल एंड इट इज स्फेरिकल इन नेचर। ये s ऑर्बिटल का शेप होता है या बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है। नाउ p ऑर्बिटल्स आर p ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप, जैसे डम्बल होता है उस शेप के होते हैं p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स का बाउंड्री सरफेस डायग्राम या शेप कैसा होता है? डम्बल शेप। अब डिपेंडिंग अपॉन इन विच एक्सिस बोथ ऑफ इट्स लोब्स आर ओरिएंटेड, p ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। देखो जैसे यहाँ पे दिया है 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये जो दोनों लोब बने हैं डंबल के, ये किस में है? x एक्सिस में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? px ऑर्बिटल। अगर ये दोनों लोब y एक्सिस में होते तो उसका नाम हो जाता py। दोनों लोब अगर z एक्सिस में होते तो हम इसको बोलते pz ऑर्बिटल। इस तरीके से p सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, px, py एंड pz। ठीक, and this is the shape of d orbitals. d orbital is double dumbbell in shape और clove leaf shape। इसमें डबल डंबल होते हैं, 2 डंबल्स होते हैं। ठीक है, अब इनके कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने प्रकार के हो सकते हैं डी ऑर्बिटल? दैट विल डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होंगी? -2, -1, 0, +1, +2। Altogether there will 5 possible values of magnetic quantum number for d orbitals। अब 5 वैल्यूज है, इसका मतलब d orbitals कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, d orbitals can be of 5 types। तो कौन कौन से 5 टाइप्स हैं विल डिस्कस लेटर ऑन। सिमिलरली f orbitals, f ऑर्बिटल में देखिए इस टाइप का शेप है। f ऑर्बिटल का एक्चुअल शेप आज तक डिटरमाइन नहीं है, किसी ने डिटरमाइन नहीं किया, ये एक इमेजिनरी डायग्राम है उसका। अब f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की? 3। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज होंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। 7 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर f ऑर्बिटल्स। और ml की यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 7 वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं एक f सबसेल के लिए? 7। तो f सबसेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 7 ओरिएंटेशंस और 7 different shapes or 7 orbitals। Clear? So this is a general picture of boundary surface diagram of different types of orbitals। Now let's discuss these orbitals in detail one by one। So first, shape of atomic orbitals or boundary surface diagram of s orbital। So you can see s orbital is spherical in shape। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे what is shape of s orbital is spherical in shape and it is symmetric sphere। Symmetric sphere का क्या मतलब है कि electron density is equally distributed in all 3 planes, xy plane, xz plane and yz plane। तीनों प्लेन में, 3 ही प्लेन होते हैं ना टोटल 3 डायमेंशंस में, तो तीनों प्लेन में
इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना बराबर होती है और देयर इज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along all the three planes. So s orbitals are spherical and symmetrical. Now अब आप दूसरा वाला डायग्राम देखिए, पहले में दिया 1s ऑर्बिटल मींस फर्स्ट एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल, k सेल का s ऑर्बिटल, that will be called 1s orbital for which value of principal quantum number is 1 and value of azimuthal quantum number is 0. ठीक है, it is similar to this first picture. ठीक है, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है और ये स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर सेकेंड एनर्जी लेवल पे चले जाएं, मतलब सेकेंड सेल पे, तो यहाँ पे जो 2s लिखा है, 2s का मतलब 2 का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये सेकेंड एनर्जी लेवल को बिलोंग करता है। और जब सेकेंड एनर्जी लेवल को बिलोंग करेगा तो कैसा शेप होगा, पहले इसमें देखिए एक स्फीयर है जस्ट लाइक 1s वाला, उसके बाहर एक ऐसा स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड एज नोड। ऐसे स्पेस को क्या बोलते हैं, नोड। तो 1s के बाहर एक ऐसा एरिया होगा 3 डायमेंशनल जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 0। दैट स्पेस और दैट प्लेन इज कॉल्ड नोडल प्लेन और सिंपली इट इज कॉल्ड नोड। फिर उस नोड के बाहर एक और ऐसा एरिया आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंड सेल, सेकेंड सबसेल। तो फर्स्ट सबसेल आ गई वो आपकी 1s वाली, और बाहर इसके जो एक और रिंग बन गई वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2s सबसेल। तो 2s सबसेल और 1s सबसेल के बीच में एक ऐसा स्पेस, सर्कुलर स्पेस होगा, स्फेरिकल स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होती, उसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर बाय डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो साई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक्स एक्सिस में क्या लिखा है हमने, रेडियस इन नैनोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसमें आप देख सकते हैं, आपको पीक्स देखना है, कितने नंबर ऑफ पीक्स आ रहे हैं ग्राफ में। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीक्स आएंगे उतने ही नंबर ऑफ नोड्स होंगे। सो 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही पीक है जहां पे रेड लाइन मैक्सिमम ऊपर तक गई है। ठीक है, देयर इज ओनली वन पीक इन 1s ऑर्बिटल, सो नंबर ऑफ नोड्स इन 1s ऑर्बिटल विल बी 0। नोड्स का मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है या नेग्लिजिबल होती है। तो नंबर ऑफ नोड्स इन 1s ऑर्बिटल इज 0। 2s ऑर्बिटल में आइए तो देखिए, एक पीक तो ये हो गई मैक्सिमम जो सबसे ऊपर है वाई एक्सिस पे रेड लाइन, फिर नीचे आया जहां पे ये आके टच किया किसको, एक्स एक्सिस को, वहां पे एक नोड हो गया। क्यों नोड हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नहीं है। फिर और डिस्टेंस बढ़ी, मतलब और दूर गए न्यूक्लियस से, अगेन देयर बिकम्स ए पीक, there is a peak, second peak, and this second peak represents that there is second subcell in which there is probability of finding electron. So 2s ऑर्बिटल देखिए ऊपर लिखा है, तो 2s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं, जितने इसमें पीक्स हैं। ठीक है, कितना पीक है आप देखिए, पीक्स इज, एक तो पहले स्टार्टिंग वाला था वो तो छोड़िए, उसके अलावा एक और पीक बीच में आया, दैट विल बी नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स, एक यहाँ पे सिंपल पीक आया कर्व में, तो दिस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ नोड्स इज 1, क्योंकि जितने पीक्स हैं उसमें से आप क्या कीजिए, 1 माइनस कर दीजिए। तो नंबर ऑफ पीक्स इन द ग्राफ -1 विल गिव द वैल्यू ऑफ नोड्स। पहले वाले में एक ही पीक था, उसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना पीक्स हो गए, 0, नोड कितने हो गए, 0। दूसरे वाले ग्राफ में 2 पीक्स हैं, एक पहला वाला, एक ये बीच में दूसरा, तो 2 minus 1 is equal to 1. Number of nodes in 2s subcell will be, or 2s orbital will be 1. Similarly 3s orbital में क्या होगा, नंबर ऑफ पीक्स कितने हैं, 1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, सो 3 minus
1, तो नंबर ऑफ नोड्स विल बी 2। आप देखिए 2 बार ये 0 को टच कर रहा है, एक बार 0 को टच कर रहा है यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, और उसके बाद दूसरी बार 0 को टच कर रहा है जहां पे मेरा कर्सर है। ठीक है, since it is touching the x-axis at two places, number of nodes will be 2. Now what will be formula to calculate the number of nodes? The number of radial nodes. Radial nodes का मतलब nodes along the radius, nodes according to radius, और एक होता है ऑर्बिटल नोड्स। ठीक है, एक ऑर्बिटल नोड्स होता है, एक रेडियल नोड्स होता है। अभी हम रेडियल नोड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडियल नोड्स कितने होंगे एस ऑर्बिटल में? n-1। एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल ऑर्बिटल्स n-1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे 1s ऑर्बिटल है तो उसमें रेडियल नोड कितने होंगे? 1 - 1 = 0, 2s है तो 2 - 1 = 1, 3s है तो 3 - 1 = 2, like this. So by using this formula we can calculate the number of radial nodes or simply nodes for s orbitals. Understood? श्रवणी, Yes, sir. Yes, sir. राज समझ में आया? राज हो जाओ। यस सर। ओके, अब देखो मैं सबका नाम नहीं बोल सकता, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं वो नहीं, जिसका एकदम से अचानक माइंड में क्लिक कर गया बोल दिया नाम। आप ये मत समझना कि मेरा नाम क्यों नहीं बोला, नहीं तो मेरे को डायरी लिख के बैठना पड़ेगा सबके नाम सामने। पढ़ाते वक्त क्या है, माइंड में कुछ और चल रहा है, उसमें नाम क्लिक नहीं आया तो नहीं बोला। अगर कल या तो फिर मैं डायरी लिख के बैठूं सबके नेम और सबका नाम एक एक करके बोलूं तो दैट विल लुक ऑड। ठीक है, सो अब ये एस ऑर्बिटल में एस the value of principal quantum number n increases, the size of s orbital also increases and the energy of s orbital also increases. तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, the energy and the size of s orbitals also increases. फाइन, आप देख सकते हैं थर्ड ये लास्ट वाले पिक्चर में सबसे नीचे क्या 1s ऑर्बिटल, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम है 1। ऊपर गए तो 2s ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ गई इसलिए स्फीयर की साइज भी बढ़ गई। फिर 3s में गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ गई, साइज भी बढ़ गई। फिर 4s में गए, साइज और बढ़ गई। सिमिलरली उसके बगल में एनर्जी भी दिया हुआ है। सो 1s से 2s जाने में एनर्जी बढ़ गई, 2s से 3s जाने में एनर्जी बढ़ गई, 3s से 4s जाने में एनर्जी बढ़ गई। तो एज वी मूव from inner shell to outer shell, the energy of electrons increases. In this middle picture s orbital, आप देख सकते हैं the size of 4s orbital is greater than size of 3s orbital is greater than size of 2s orbital is greater than size of 1s orbital. तो आपसे पूछ सकते हैं कि arrange these s orbitals in decreasing order of their energy or decreasing order of their size. तो ये पिक्चर अगर आपके माइंड में क्लियर रहेगी तो आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा, आपसे नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया, जो कि आईआईटी जेई के एग्जाम्स में हर साल पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स निकालिए। जनरली ये चीजें टीचर्स छोड़ देते हैं, ये चीजें टीचर्स नहीं पढ़ाते, वो सीधे शेप्स ड्रॉ कर दिया बोर्ड में, बस बता दिया दीज आर द शेप्स ऑफ एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। लेकिन जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं, जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं, वो इधर से आते हैं। how to calculate the number of nodes, how to calculate the number of radial nodes, how to calculate the number of orbital nodes, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर ओवरलुक कर देते हैं टीचर्स। ये ओवरलुक करने की नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर केमिस्ट्री 11th-12th की पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना है कोई बात ही नहीं। और जेई मेंस हो चाहे नीट हो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो केमिस्ट्री ही है। आप किसी भी सीनियर से अपने पूछ लेना, ठीक है, सबसे ज्यादा इनका स्कोर केमिस्ट्री में होता है, प्रोवाइडेड दे शुड टेक केमिस्ट्री सीरियसली। बच्चे जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हैं, जहां दूर भागे तो उनका आगे का करियर भी ब्लॉक होने लगता है। मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं हवा में निकल जाते हैं, भनक ही नहीं लगती। ठीक है, भनक ही नहीं लगती तो करें क्या, छोड़ के आते हैं। ठीक, अब चाहे अगर नीट वाला है तो उसका स्कोर किससे होता है, या केमिस्ट्री से या बायो से। ठीक है, जेई वाला है तो उसका स्कोर करने का सबसे बड़ा एक ही मात्र ऑप्शन बचता है, क्या, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इजी समझ के उसको नेग्लेक्ट करना ये बहुत हार्मफुल है।
अगर आपको अपना करियर में थोड़ा सा भी करियर कॉन्शियस है, टेक केमिस्ट्री वेरी सीरियसली, दो इट इज वेरी टफ and it takes a lot of time and patience to learn and memorize each and everything. फिजिक्स मैथ में सिर्फ समझने से काम चल जाता है, केमिस्ट्री में सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा समझना भी पड़ेगा, समझने के बाद याद भी करना, डबल मेहनत है। जो डबल मेहनत अच्छे से कर लेगा वही आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक रास्ता बता रहा हूँ ताकि आपको केमिस्ट्री में आगे कोई दिक्कत ना आए। मैं चाहते नहीं, कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए मेरे सब्जेक्ट में और किसी भी सब्जेक्ट में। फाइन, तो अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Anything else? Anything else you want to discuss? Okay, the shapes of p orbitals. चलिए अब कर लेते हैं, टाइम हो गया फिर भी कर लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम को लेकर? No, sir. No, sir. करना है, No, sir. करना है कि अगली क्लास में करना है? नो, दिक्कत नहीं है कि नहीं करना है, ये बताओ। सर प्रॉब्लम नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते हैं। तो shapes of atomic orbitals और boundary surface diagrams of atomic orbitals। आप एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं ये बोर्ड में क्लास में पढ़ा होता, Zoom ऐप से पढ़ा रहा होता, क्या क्लियर पिक्चर्स आपको देखने को मिलती? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी करना चल रही है? सर अभी भी कट रही है। अभी कट रही है, ये नेटवर्क, बारिश का मौसम। अभी आ रही है आवाज? हाँ Yes, सर sir. अब आ रही है। हेलो, ये सर ठीक है अब। आने लग गई? जब भी आवाज नहीं आए तो बोल दिया करो कि ठीक है। अब देखिए, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ पी सबसेल। अब हमने आपको बताया था कि पी सबसेल या पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं, ठीक है? अब इसमें एक ही प्लेन होता है जो ये सेंटर से पास हुआ, ये जो सेंटर है, सेंटर ये क्या होगा, पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस होगा। और इस न्यूक्लियस से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल क्या किए, एक प्लेन पास कर दिए, दैट विल बी प्लेन और इट इज कॉल्ड नोडल प्लेन, where the probability of finding electron is minimum। ये p ऑर्बिटल का ऑर्बिटल नोड कहलाएगा, वह रेडियल नोड था और ये ऑर्बिटल नोड है, यानी नोडल प्लेन है। ऑर्बिटल नोड को हम नोडल प्लेन भी बोलते हैं, इसी को हम, ठीक। अब p ऑर्बिटल का शेप कैसा है, दो लूप्स में डिवाइडेड है, मतलब ये डंबल शेप्ड है। अब इस वाले शेप में फर्स्ट पिक्चर में both lobes of p orbitals are oriented along the z axis। z axis लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, pz orbital। फाइन, now p orbitals have three different orientations as it is visible in second picture। पहले ऑर्बिटल के लिए ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, सपोज -1 है, और लोब्स कहां पे है, p ऑर्बिटल के लोब्स x एक्सिस में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, px ऑर्बिटल। दैट मींस फॉर px ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज वैल्यू -1। क्लियर? नाउ सेकंड वाली पिक्चर में, इसी में देखिए क्या है, लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस। ये y एक्सिस में है दोनों लोब्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ y एक्सिस पे है, ठीक। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पी वाई ऑर्बिटल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। देन थर्ड टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल इज पीजेड, और इसमें क्या है, बोथ द लूप्स आर ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, इसलिए इसका नाम क्या दिया, पीजेड। पीजेड के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक। इन दिस वे देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर p orbitals। On the basis of 3 possible orientations, they are named as px, py and pz। The number of orientations are decided by magnetic quantum number। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज होती है p ऑर्बिटल के लिए, 1, 0, +1, इसलिए 3 ओरिएंटेशंस है। नाउ द साइज ऑफ p ऑर्बिटल्स आल्सो डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिक्रीज होगी,
the size of p orbitals or the size of lobes of p orbitals will also decrease, and similarly the energy will also decrease as the value of n decreases. So the energy and size of 5p orbital is greater than that of 4p orbital, which in turn is greater than that of 3p orbital, and the shape and energy, size and energy of 3p orbital is greater than 2p orbital. यहाँ पे क्या हो रहा है, n की वैल्यू डिक्रीज हो रही, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिक्रीज होगी, वैसे ही वैसे साइज एंड एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल्स आल्सो डिक्रीज. ये साइज का पिक्चर हो गई. ये नेक्स्ट पिक्चर क्या है, एनर्जी की है. अब आप देखिए 1s ऑर्बिटल होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, क्योंकि s सबसेल में p ऑर्बिटल फर्स्ट सेल में p ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेल में l की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 होगी तो सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, p हो ही नहीं सकता. जब सेकंड सेल में आए, सेकंड सेल मतलब जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ l, 0 एंड 1. 0 के लिए क्या हो जाएगा 2s ऑर्बिटल, और 1 के लिए क्या हो जाएंगे 2p ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3, 2px, 2py एंड 2pz. ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस डायग्राम में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग. Since the value of principal quantum number is increasing, the value of energy is also increasing. So energy of electron increases as the value of principal quantum number also increases. ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. 1s is less than 2s, is less than 2p, is less than 3s, is less than 3p, is less than 4s, is less than 3d, then 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4s. This is increasing order of energy of different subcells. अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, p ऑर्बिटल में भी देखिए एक p ऑर्बिटल ऐसा हो गया कि इसमें ये देखिए एक डंबल दिख रहा है. ठीक, फिर इस एक डंबल के बाहर एक ऐसा स्पेस दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, 0 है. दिस इज कॉल्ड एज रेडियल नोड, क्योंकि दिस इज अलोंग द रेडियस, अलोंग द साइज. दिस इज द रेडियल नोड्स ऑफ p ऑर्बिटल्स. ठीक है, p ऑर्बिटल्स में भी रेडियल नोड्स होंगे, या सिंपली नोड्स होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है, जहां पे मेरा कर्सर है, जहां पे एक भी डॉट्स नहीं दिख रहे हैं आपको, ये एक रेडियल नोड है. फिर उसके बाहर एक ऐसा स्पेस आ गया जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रेडियल नोड आएगा. ठीक है, सो अब इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस p ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स या नोड्स होंगे. उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर p ऑर्बिटल्स द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n-2. ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए क्या फॉर्मूला था, n-1. p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है, n-2. सो 2p के लिए कितने रेडियल नोड्स हो जाएंगे, 2 - 2 = 0. मतलब इसीलिए इसमें पिक्चर में देखिए रेडियल नोड्स नहीं है 2p में. 3p में कितने रेडियल नोड्स होंगे, 3 - 2 = 1. यहाँ देखिए एक रेडियल नोड है. ठीक है, 4p में कितने रेडियल नोड्स होंगे, 4 - 2 यानी 2. एक रेडियल नोड ये है जहाँ पे कर्सर है, दूसरा रेडियल नोड ये है जहाँ पे कर्सर है. सो in this way we can calculate the number of nodes or number of radial nodes present in p orbitals by using the formula nodes is equal to n-2. फाइन. अब आ जाते हैं हम नोडल प्लेन्स में. अ प्लेन इज constituted by two axes, या तो x एक्सिस y एक्सिस के बीच में, या तो y एक्सिस z एक्सिस के बीच में, या तो x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में. तो p ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, कितने एंगुलर नोड्स हो सकते हैं. एंगुलर नोड्स को ही हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स. ठीक है, सो p ऑर्बिटल कैन हैव ओनली वन नोडल प्लेन्स because the number of angular nodes or nodal planes in p orbitals is equal to the value of L for it. ठीक है, वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब p ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1. इसलिए p orbitals have only one nodal plane or one angular nodes. s ऑर्बिटल में एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, एंगुलर नोड नहीं होता s ऑर्बिटल में.
क्यों नहीं होता? क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक भी प्लेन नहीं होगा। फाइन। So in this way, we came to know the shapes and number of radial nodes, size and energy of s orbitals and p orbitals. The remaining portion of this chapter we'll discuss in the next class. The time says it's 4:50. I'm coming back to Google Meet. If you have any doubt, you can ask freely and happily.